हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ककायन एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर न्यू सिलेबस 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आपको फिगर में दिख रहा है दैट इज कोन। तो वी शुड डिस्कस अबाउट द कोन। फर्स्ट वन, what are the real life example of the cone structure, then generation of the cone, and finally you have to calculate that the surface area of the cone। तो चलिए हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। दे आर गिवन सो मेनी टाइप ऑफ एग्जांपल, दैट इज रेड that is chiroid. Chiroid is like not just right circular cone, but that is cone like structure. This one is the cone like structure. Okay, then radius also cone like structure. This one is the container of the ice cream. Here fill up that the heap of the ice cream, that is also a cone like structure. Road safety device, that is also cone like structure. This one is the birthday cap. This one is a perfect right circular cone. This one is the cone like, that is मूंगफली आप जब देखते होंगे तो this one is cone, but this one is not perfectly like right circular cone. तो चलिए हम बात करते हैं। फर्स्ट वन इज द जनरेशन ऑफ द कोन। तो हाउ टू जनरेट दैट द cone like structure? तो we should take a triangle that is ABC and B at the right angle. B पे आपको क्या है, that is right angle. Then you have to fix that a string along the side AB. आप क्या करिए, एक स्ट्रिंग जो है AB के साइड पे इसे fix that. Then you have to hold them on both sides tightly and rotate about this triangle ABC along the AB जब आप AB के corresponding इसे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे. then you have to rotate them of many times. then you have to generate like this type of the surface, and that is the right circular cone, that is cone like a structure. okay, तो यहाँ पे क्या होगी, that is CB. CB is the radius of the base circle. यहाँ पे जो आप रोटेट होगी यही आपका क्या है, CB is the radius, और either C से C is the diameter of the base circle. And this surface area, this surface is generating that the what, curved surface area, and this one is the height of the cone. जो आपका that is AB side is the height of cone. then आपका ये क्या है, आपका ये आइसक्रीम पाइप हो गया. this one is also a cone structure, but this one is not right circular cone, क्योंकि आपका ये जो बेस है, this one is not perfectly circular. this one is the some not like circular. this one is also not circular. so this type of structure is not right circular cone. so in this chapter we should focus on only cone, that means right circular cone. cone कहने का मतलब क्या है कि हम जब भी बात करेंगे cone बोल रहे हैं, that means right circular cone. right circular cone means आपका बेस जो है आपका क्या है, 90 डिग्री पे है, that is fully circular है, तो उसकी हम बात करने वाले हैं. then here the determine or derivation of the area of the area. तो एरिया क्या है, two type of the area. one is the curved surface area and second one is the total surface area. तो ये कोन को जब हम क्या करेंगे कि about the vertex, ये जो आपका पॉइंट है vertex, along that vertex perpendicular you have to cut them. जब आप कट करेंगे तो आप ओपन करेंगे तो इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा. तो इस स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे,
कि बी से आपका बी डैश है ना, B1 एक स्ट्रक्चर लिए, B2, B3, B4, B5, B6, B7 n टाइम्स ऑफ कट करेंगे तो आपको क्या इस तरह से एक स्ट्रक्चर मिलेगी। ये क्या है O, दिस वन इज द B, और एक कट किए आपको एक स्मॉल पीसेस जब कट कर रहे हैं तो आपको ये क्या है, दैट इज A वाला। तो ये क्या है आपका, ये लेंथ B1 है और इसको आप मानिए D डैश। तो ये भी एक ट्रायंगल हो गई। तो आप क्या करेंगे, ये जब ट्रायंगल है तो आपको n टाइम्स ऑफ मतलब 1000 ऑफ ट्रायंगल मिलेगी। तो अब उसको क्या करेंगे कि एरिया है ना, तो कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल में क्या हो जाती है, हाफ इनटू बेस ऑफ ईच ट्रायंगल है ना, आप इसे पढ़े हैं, बेस ऑफ ईच ट्रायंगल है ना, इनटू लेंथ। तो ये लेंथ आपको क्या है, दैट इज L, तो बेन L। तो इसमें आपको क्या है, n नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको जब मिल जाएगी तो n नंबर ऑफ ट्रायंगल में आपको क्या हो जाएगी, दैट इज हाफ इनटू L। तो आपका क्या रहेगा, हाफ इनटू समेशन ऑफ एरिया ऑफ इस ट्रायंगल है ना, तो समेशन ऑफ एरिया ऑफ इच ट्रायंगल। तो समेशन ऑफ एरिया ऑफ इच ट्रायंगल की बात करेंगे तो हाफ इनटू है ना B1 इंटू L प्लस हाफ इंटू B2 इंटू L प्लस हाफ इंटू B3 इंटू L प्लस डॉट 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 प्लस हाफ इंटू Bn इंटू L। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हाफ इंटू L क्या है, कॉमन आउट, देन B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट डॉट प्लस Bn है ना। तो जब आप Bn की बात करेंगे तो ये आपको देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एरिया ऑफ है ना, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस है ना। तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस क्या होगा, हाफ इनटू L इनटू लेंथ ऑफ दी है ना, लेंथ ऑफ बेस सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इनटू L इनटू ये क्या हो जाएगी, दैट इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल। यही तो आपका है, यही तो आपका लेंथ था, ये जो आप L बात कर रहे हैं यही तो आपका कट हो रही है। तो ये क्या है, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होती है, हाफ इनटू L इनटू दैट इज 2 पाई r। तो ये 2 कैंसिल आउट, तो यहां से आपको हो जाएगी पाई इंटू r इंटू L। तो ये क्या हो जाएगी, दैट इज कर्व्ड है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज इसको क्या बोलेंगे, CSA इक्वल टू पाई r L। तो जब ये आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकल गई तो आपको बचा क्या, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगी, ये जो आपका बेस एरिया है, तो बेस क्या है आपका, दैट इज सर्कल। तो बेस एरिया में आपको यहां पे लिखेंगे कि टोटल है ना, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगी, दैट इज पाई r L प्लस ये क्या है, दैट इज सर्कुलर है, दैट मींस पाई r स्क्वायर। तो यहां से आप क्या करेंगे, पाई r कॉमन आउट, देन r प्लस L। तो आपका क्या है, दोनों आपको निकल गया, क्या है, CSA ऑफ द कोन इक्वल टू क्या हो गई, दैट इज पाई इंटू r इंटू L है ना, और TSA इक्वल टू क्या हो जाएगी, पाई r इंटू r प्लस L। तो अब बात करते हैं कि आप देखिए L यदि हमको निकालना है तो L क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ये राइट सर्कुलर कोन है तो ये परपेंडिकुलर हो गई है,
हाइट, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो L इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या है, लेंथ निकल जाएगी। तो चलिए हम इस तरह से क्या है डिस्कस कर लिए कि कोन का सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो आप एग्जांपल 1 की बात करेंगे, जब हम प्रॉब्लम में हम जाएंगे तो प्रॉब्लम नंबर 1 है ना, एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में आप देख सकते हैं कि आपको दिया गया है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर cone whose slant height is 10 centimeter and whose base radius is 7 सेंटीमीटर। तो कैसे डिटरमिन करेंगे, तो आपका इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा, पहले क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है, तो ये क्या है, दैट इज राइट सर्कुलर कोन आपने बना लिया है ना। अब राइट सर्कुलर कोन का ये बोल रहा है कि स्लेंट हाइट दैट इज ये 10 सेंटीमीटर है। देन आपका इसके करस्पॉन्डिंग आपका ये सेंटर है, यहां से ये जो बेस रेडियस है ये आपको क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज CSA इक्वल टू क्या है पाई इंटू आर इंटू एल। तो आप इसे पुट कीजिए 22/7 इंटू आर क्या है दैट इज 7 सेंटीमीटर, एल इज 10 सेंटीमीटर, 7 कैंसिल आउट दैट इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कि आपका टोटल जो है क्या कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम आप जब बात करेंगे एग्जांपल नंबर 2 है ना। तो एग्जांपल नंबर 2 में दिया गया है कि हाइट ऑफ द कोन है ना, द हाइट ऑफ कोन इज कितना गया है आपका 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द 12 सेंटीमीटर, रेडियस है ना, रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड दैट द है ना, फाइंड द CSA एंड TSA है ना, कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसमें यूज करना है यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो देखिए आपका क्या है, एक कोन दिया है ना। तो कोन आप पहले क्या कीजिए, फिगर बना लीजिए। यहाँ पे जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। ये कोन हो गई, देन दिस वन इज द बेस दैट इज राइट सर्कुलर कोन हो गई। यहाँ पे ये आपको ये सेंटर पे बाइसेक्ट करेगी दैट इज यहाँ पे सेंटर, यहाँ से रेडियस, तो रेडियस क्या दिया है दैट इज 12 सेंटीमीटर। ये हाइट आपको दिया गया है, हाइट इज 16 सेंटीमीटर। देन आपका एल नहीं मालूम है ना, एल आपको नहीं दिया गया है। तो एल नहीं दिया गया है तो आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए करेंगे। तो आप एल इक्वल टू क्या आ जाएगी, रूट अंडर 16 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इसको आप करेंगे तो 16 का होल स्क्वायर है ना, तो बराबर है 44 से 144 प्लस है ना 16 96 से दैट इज 296 है ना। तो आपको क्या हो गया, सॉरी 16 को होल स्क्वायर जब आप निकालेंगे सॉरी 256। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 3 1
400 दैट इज 20 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, स्लेंट हाइट। इसको एल को क्या बोलते हैं, दैट इज स्लेंट हाइट। तो अब स्लेंट हाइट निकल गया। तो अब पहला क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो सी एस ए क्या है, दैट इज पाई इंटू आर इंटू एल। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 12, देन एल की वैल्यू 20। तो जब आप इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका जो आ जाएगा 12 24 दिया 72, दैट मीन 77536 है ना, सेंटीमीटर होल स्क्वायर। देन टी एस ए टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो क्या है फॉर्मूला, पाई इंटू आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 12 एंड एल हमारा कितना निकला, दैट इज 20 प्लस आर क्या है 12। तो यहां से आप इसको करेंगे 3.14 इंटू 12 इंटू क्या है, दैट इज 32। तो जब हम इसे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगी 1205.76 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमें क्या है, कैलकुलेट हो गई कि कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। जब भी हम टोटल सरफेस एरिया में बात करेंगे तो उसमें आपको स्लेंट हाइट, और इस केस में क्या है, आपको हाइट एंड रेडियस दी हुई थी। तो हम पहले क्या करेंगे, स्लेंट हाइट कैलकुलेट करेंगे यूज विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें क्या है हाइपोटेनस का है ना, क्योंकि स्लेंट हाइट हाइपोटेनस है। तो L इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की मदद से। तो हम नेक्स्ट जो एग्जांपल है कॉर्न का, उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अप टू दिस वन एनीवन एनी डाउट देन यू हैव टू कमेंट देम। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।